हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th के टॉपिक से। आज की वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सो फर्स्ट लुक एट द पैटर्न्स गिवन फॉर द फॉलोइंग. For the first example, the heights in centimeter of some students in a queue in the morning assembly are this. Okay, heights are given in form of centimeter for a queue in the morning assembly as such. So, is there any pattern in example 1? Yes, the difference of height is 1 centimeter in each as 147. Then successive term is 148. Then next successive term is 149. So, there is a pattern of increasing height in terms of 1 centimeter. Okay, then for the second example, the cash prizes given by a school to the toppers of class 1 to 12th are respectively. Okay, cash prizes are given for the toppers of class 1 to 12 for a school are respectively 200, then 250, then 300 up to 750. So is there any pattern? Yes, there is an increase of 50 rupees in the successive prices amount. Okay, so they follow a pattern. Then see the next example. Shakila puts rupees 100 into her daughter's money box when she was 1 year old. जब वो 1 साल की थी तो उसकी मदर पुट करती है उसके मनी बॉक्स में रुपीज 100 एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय रुपीज 50 एवरी ईयर. हर मदर इंक्रीजेज द अमाउंट एवरी ईयर बाय रुपीज 50. मीन्स 1 ईयर पे 100 रुपीज, देन 2 years पे 150, 3 years पर 200 and then so on. So here also a pattern is seen. Each year the amount is increased by rupees 50. So this amount follow a pattern. Then in fourth example we easily see that there is an decrease of 30 from each number. Okay, successive term में each successive term is less than 30 from its preceding term. Clear? Then fifth one also follow a pattern as there is increase of 1 in each number. Clearly? So from these examples we see that each example follow a pattern. Okay, means if we take any term, first term as constant and increase the same amount in each successive term from its preceding term, then it is an arithmetic progression. So how we come to the definition of arithmetic progressions from seeing these patterns? As we see, these all examples follow a pattern and the first term will be constant in each pattern and the next successive term increase or decrease by the same amount. Then the pattern is known as your arithmetic progression. And the common difference for these patterns, each pattern have a common difference. Okay, for these patterns is defined by D in AP. Means in arithmetic progression we define the common difference by D. Clear? Next, the first term is denoted by the letter A. These first term are fixed in each pattern. So we define the first term by the letter A. First term for each pattern is fixed and we write it as by the letter small a in AP. So each first term in these patterns is your A and the next successive terms are A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So we add the same common difference to each term for finding out our progression. So these are the common terms
और जनरल टर्म फॉर एन एपी, general terms for an AP. Clear? Then we write for the example 4th and 5th and this example 3rd the terms A plus D, A plus 2D. Okay. So for this example 3rd we see that A is our 100 and the next term A plus D is 150 and next term A plus 2D 200, A plus 3D is 250 and this is an infinite progression as we do not define the terms, the last term. So this is an infinite arithmetic progression. Okay, where D is, what is D? D is simply how much we increase in each successive term, 50. Or we find the D by simply subtracting the successive term, subtracting the preceding term from its successive term. Means when we subtract 150, when we subtract 100 from 150, we get the common difference 50. For finding simply common difference, हमें subtract कर लेना है अपने successive term में से preceding terms को, so that we can find out the common difference D for our arithmetic progression. Okay. Similarly, for the example 4th and 5th, we can easily write our first term and their respective successive terms. So for the example 4th, the common difference D is here. D is not 30 but 70 minus 100. Always subtract the preceding term from the successive term. Successive term में से ही preceding term को subtract करने पर आपका common difference आएगा. So for example 4th, common difference is minus 30, not 30. Clear? ये आपको clear cut remind रखना है कि for finding common difference we always subtract the preceding term from its next successive term. So here the common difference is minus 30. And for the example 5th, यहाँ पर क्या हो रहा है? Increase of 1. So common difference D is minus 2 minus of 3. Means minus 2 plus 3 equals to 1. So for this example, common difference is 1. So common difference D is for any arithmetic progression will be positive, negative or maybe 0. 0 भी आपका हो सकता है. Clear? So these are the possibilities for the value of common difference in an arithmetic progression. Now I write one more example, example 6. In this example we see that every time the successive term is 3. So there is a common difference of 3 minus 3 means 0. We add in each successive term 0, common difference. Okay. So this is also an AP, infinite AP, because we cannot define the last term here. So it is also an infinite AP for which D is 0. So the possibility for our common difference will be, it will be positive, negative or maybe 0. Now solve, we have to solve now some questions based upon this arithmetic progression. So question 1, this is from your exercise 5.1 NCERT book. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका एक्सरसाइज 5.1 में. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी. ये आपको एपी गिवन है, वी हैव टू राइट देयर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो द फॉर द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा? ए मीन्स 3 दैट इज गिवन इन द एपी. ओके, देन हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस डी? सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. कोई भी आप सक्सेसिव टर्म ले सकते हो, ठीक है. सो 1 minus 3, द कॉमन डिफरेंस विल बी -2. और अगर हम ये वाला टर्म लेंगे तो इसमें से इसका ये वाला प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे. मीन्स -1 माइनस ऑफ 1 -2. एंड डी विल ऑलवेज सेम फॉर ईच सक्सेसिव एंड प्रीसीडिंग टर्म. सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. And for second example, A is simply 1/3, क्योंकि first term आपका 1/3 given है. Then D will be
5 by 3 minus 1 by 3 means 4 by 3. In this way, we find out our common difference D for these APs. And for the third example given, for the third part, A is 0.6 and D will be 1.7 minus 0.6. So it comes out to be 1.1. Clear? So this is the question third from exercise 5.1. Next question. अब क्वेश्चन फोर्थ देखिए एक्सरसाइज 5.1 से इसके कुछ पार्ट्स मैंने राइट डाउन किए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपको इन द सेम वे खुद से सॉल्व करके देखने हैं. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स ऑफ दिस एपीज. क्लियर? सो हाउ वी चेक दैट these patterns are given as form an AP or not? Simply, if their common difference for each successive term and preceding term will be same, then it is an AP. Clear? हमें सिर्फ D check करना है for each successive and preceding term. If it will be same, then it form an AP. Like for the first part, D is 4 minus 2, 2. Then 8 minus 4, it will be 4. So it will not form an AP. As common difference will not same. First part के लिए when we find out D, 4 minus 2 it is 2, and again if we subtract this 4 from its successive term then D will become 4. So D will not constant, so it does not form an AP. Clear? Then for second part, if we subtract 2 from 5 by 2 from its successive term, then D comes out to be 5 minus 4 by 2 means 1 by 2. And for the next successive term, it will 3 minus 5 by 2 or 6 minus 5 by 2 means 1 by 2. So D will remain same. So it will form an AP or not. Check for the next term also. So for the next term, 7 by 2 minus 3. So it will 7 minus 6 over 2 or 1 by 2. So it forms an AP as D remains same in each successive term and preceding term को subtract करने पर D remains same, then it forms an AP. Then if it will form an AP, then we have to find the common difference D. जो हमने find out कर लिया है, D is half, and write 3 more terms. अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और राइट डाउन करने हैं सीरीज के. सो नेक्स्ट टर्म विल बी फॉर द सेकंड पार्ट, यहाँ हाफ ऐड कर दो इसमें. सो इट विल बिकम 8 by 2 मीन्स 4. सो नेक्स्ट टर्म विल बी 4 एंड देन अगेन नेक्स्ट टर्म, देन अगेन एडिंग हाफ इट विल बिकम 9 by 2, then again adding half it comes out to be 5. So in this way you have to find out the next 3 terms of AP. Clear? Then check for the fourth part. For the fourth part, first find out D. So D is minus 6 minus of minus 10. So ये आपका आ जाएगा plus 10 और it is 4. और minus 2 minus of minus 6, ये भी आपका 4 आएगा. देन अगेन 2 माइनस माइनस ऑफ 2, ये भी आपका 4 आएगा. एस डी रिमेन सेम, सो इट फॉर्म्स एन एपी. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं बाय एडिंग 4 इन ईच प्रीसीडिंग टर्म. सो व्हेन वी ऐड 4 into next preceding term will be 6, and then again adding 4 10, then again adding 4 14. So these are the next 3 terms for this AP. Then for 10th part, D is 2A minus A. यहाँ भी आपका A ही आएगा, यहाँ भी आपका A आएगा. So it will form an AP. And the next 3 term will be simply 5A, 6A and 7A. Okay. Then 12th part,
उसका सॉल्यूशन इसी के नीचे कर देते हैं। d इज √6 माइनस √3, और √6 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, √2 इंटू √3 माइनस √3, सो √3 इज कॉमन, रिमेनिंग इज √2 माइनस 1। नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म इज √9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो √6 को, सो ये आपका आएगा 3 माइनस √2 √3, और वी कैन राइट 3 एज √3 इंटू √3, सो व्हाट इज कॉमन, √3, और इन साइड में आपका बचेगा √3 माइनस √2। So D is not same here, so it does not form an AP. Okay, in this way you check that the pattern form an AP or not, and then finding the next three terms with the help of D, common difference. Clear? So आपके एक्सरसाइज 5.1 जस्ट इंट्रोडक्शन बेस्ड है चैप्टर 5 का ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, वेदर इट इज एन एपी और नॉट। सो फॉर एपी फर्स्ट चेक योर कॉमन डिफरेंस डी फॉर ईच सक्सेसिव एंड प्रीसीडिंग टर्म, इफ इट इज कांस्टेंट देन इट फॉर्म एन एपी, अदरवाइज नॉट। Then come to next topic, means nth term of an AP and sum of n terms of an AP. नेक्स्ट है आपका nth term of an AP. What is your nth term of an AP and or how to find out nth term of an AP? So this is the formula for nth term of an AP. An equals to a plus n minus 1d, or we denote it by the letter n. Then sum of first n terms of an AP. If we have to find out sum of first n terms of an AP, then the formula is s equals to n by 2 2a plus n minus 1d, or we can write it as simply n by 2 2a को हम break down कर सकते हैं a plus n minus 1d में, then this whole term is your an, so we write it as in terms of an sum is n by 2 a plus an or n by 2 a plus n. इन्हीं दो फॉर्मूलाज पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3। सो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 से एंड 5.3 से। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखिएगा बाय योर सेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 11 टर्म, मीन्स वी राइट A11 एज 38, और क्या गिवन है A16 एज 73, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 31st टर्म। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस A11 एंड A16 फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट टर्म फॉर एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस D। सो A11 व्हेन वी राइट A11, सो n इज हियर 11, and for the A16 n is 16, and for this A31 n is 31. So n clear है आपको, what is n here in this formula? So for A11 formula is a plus n minus 1d, means 11 minus 1d, और A11 आपको given है, so value रखिए उसकी। A11 is 38 and A we have to find out, और ये आपका बन जाएगा 10d। ठीक है, so इसको मार्क कर दीजिए 1। देन फ्रॉम A16 के लिए 73 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मीन्स 15 आ जाएगा, ये बनेगी टर्म, इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन 2। अब ये जो आई हैं आपकी इक्वेशन 1 एंड 2, विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे अपना फर्स्ट टर्म a फॉर दिस A31 एंड द कॉमन डिफरेंस d। जब आपके पास a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी एंड d की भी, n हमारे पास है, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट A31 ऑल्सो with the help of this formula or using this formula. Clear? So solve करते हैं इसको further. So if we subtract equation 1 from first, then आपका क्या आ जाएगा 73 minus 38, और लेफ्ट हैंड साइड में ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 15d minus 10d is remaining. So यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 5d equals to 73 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 38 को, so it becomes 35, और d आपका क्या आएगा 7। क्लियर है ये आपको? सो आप इसको 7 d की वैल्यू को या इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में, आपके वहां से क्या जाएगी a की वैल्यू। सो फ्रॉम 1
अब 1 से हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना a, मीन्स 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d है, मीन्स 10 इंटू 7। सो a क्या आ जाएगा यहाँ से, a इज 38 माइनस 70। सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, 32 माइनस 32 आ रही है। क्लियर। और ये दोनों में सेम ही आएगी, इसमें भी एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लो। ये आपका क्या बनेगा, 15 7 जा हाउ मच, 105। 105 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करिए। ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में ही आएगी आपकी वैल्यू। क्लियर है, तो सेम ही आ रही है। तो इट मीन्स -32 इज योर फर्स्ट टर्म फॉर दिस एपी। अब इसकी हेल्प से हमें पता लग गया, डी पता लग गया, एन हमारे पास है। सो वी कैन नाउ इजिली फाइंड आउट आवर A31। सो A31 क्या हो जाएगा यहाँ पे, as A is -32, D is 7 and N is 31. So A31 now becomes A means -32 plus N minus 1 means 31 minus 1 into D. ठीक है, अब ये सोल्व कर लीजिए। दैट इज योर 31st टर्म ऑफ दिस AP। तो ये आपका आएगा 30 इंटू 7 मीन्स 210 और सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ये क्या वैल्यू बनेगी, 178। So 178 is the final answer for question number 7th. Then come to next question. Next देखिए क्वेश्चन 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब ये आपको AP गिवन है और ये आपका लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। सो हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस AP। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो गिवन AP है उससे आपका A क्या हो जाएगा, A इज 3 and last term an is 253 and we have to find out A20 means A plus n minus 1 means 21, 20 minus 1 into D। so अब आपको यहाँ क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ D, क्योंकि A हमारे पास है और अगर D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं देन वी कैन इजिली फाइंड आउट A20। सो D हम इस AP से फाइंड आउट कर लेंगे। D is 8 minus 3 means 5. So substitute this value for finding out A20 means 3 plus 19 into 5 or 3 plus 95. So 98 is the 20th term for this AP। ठीक है, इस टाइप के दो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए, हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म। और आपके और भी बहुत सारे टाइप्स बनते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस करके देखिएगा खुद से। सो नेक्स्ट हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के हाउ टू सोल्व द सम बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ एन AP। सो फोर्थ क्वेश्चन है 5.3 से, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ। ये आपको सम गिवन है यहाँ पे, ठीक है, टर्म गिवन नहीं है। अब क्या गिवन है, सम। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, मीन्स we have to find out the value of n here। क्लियर, इतना क्लियर है। यहाँ से सम वाले क्वेश्चंस में सम वर्ड यूज होगा आपका, और जहाँ ये वर्ड यूज होगा वहाँ हमें फॉर्मूला यूज करना है SN मीन्स n/2 A प्लस L। ये L क्या है आपका, लास्ट टर्म। सो यहाँ पर आपका सम गिवन है 636 मीन्स SN गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज योर 9 और L लास्ट टर्म। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सो यहाँ पर आप फॉर्मूला रख दो लास्ट टर्म के लिए, A प्लस n माइनस 1D। जहाँ आपका लास्ट टर्म गिवन नहीं है वहाँ हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट टर्म तो यहाँ गिवन नहीं है, सो वी हैव टू यूज इट्स फॉर्मूला। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, 636 इक्वल्स टू n/2। अब हमें A तो पता है तो A की वैल्यू रख दो, देन n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है, D भी हमें पता है। D क्या है यहाँ पर,
डी है 17 माइनस 9 मीन्स कितनी वैल्यू है आपकी टी की 8। सो डी भी रख दीजिए। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8। क्लियर। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फाइनली आएगा ये इधर n ब्रैकेट 10 प्लस 8n और 1 2 7 2 यहाँ बना 10n प्लस 8n स्क्वेयर। क्लियर। अब जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 2 से डिवाइड करने पर या 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड करने पर ये आपका बनेगा 636 और यहाँ 5n प्लस 4n स्क्वेयर। अब ये टर्म भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं देन। सो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ n। सो फाइनली n की वैल्यू बाय फैक्टराइजेशन, अब n की वैल्यू यहाँ 5n के लिए रखेंगे 53n माइनस 48n, ठीक है। जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे हम लाइक दिस। सो उनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 48n यहाँ रखते हैं और ये 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सो 4n इज कॉमन, सो रिमेनिंग इज n माइनस 12 और यहाँ से आपका 53 कॉमन आएगा, रिमेनिंग इज n माइनस 12। सो 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो n की वैल्यू इन दो टर्म से इससे तो बनेगा माइनस 53/4 जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपके नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव आ सकते हैं, नो। सो सेकंड से आएगा आपका n इक्वल्स टू 12। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन दिस वे वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n और नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द सम टाइप क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व करके देखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 लिया है हमने एक्सरसाइज 5.3 से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सो हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का ऑफ एन एपी इन विच डी गिवन है 7 एंड 22nd टर्म गिवन है, मीन्स ये A22 गिवन है, ठीक है। यहाँ हम सम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है 22nd टर्म, दैट इज an का फॉर्मूला हमें यूज करना है फॉर A22। सो A22 गिवन है और d given है। So by using an formula we have to find out the first term a. So A22 is a plus n minus 1d means 21d। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7। सो यहाँ से a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। सो a प्लस 147 इक्वल्स टू 149 और a इज सिंपली 149 माइनस 147 मीन्स 2। a हमें पता लग गया यहाँ से। अब S22 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा n/2 मीन्स 22/2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1d मीन्स 21 इंटू d और d की वैल्यू क्या है आपकी गिवन है 7। इस टाइप से आपने फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर। सो S22 अब फाइंड आउट कर ही लेंगे हम क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे। सो ये आया 147। सो अब इसको सोल्व कर लीजिए फाइनली। सो ये बना 151 और बाय मल्टीप्लाइंग 11 बाय 151 वी फाइंड आउट आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से कुछ सम के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। सो आज के लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी एंड हाउ टू चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, और उसका nth टर्म का फॉर्मूला किया, उस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस किए फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर्मूला एंड बेस्ड अपॉन इट एक्सरसाइज 5.3 से हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए। सो आप भी सोल्व करके देखिएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर देन प्रेस द लाइक बटन
and subscribe and share my channel more and more. Thank you so much.